pause and listen to what I'm going to say next, because this is a warning for all of us. इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकन है, वीडियो में हम इंडिया की प्रचलित खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है कि बिहार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में बादल छाएंगे और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 9 से 12 मार्च को भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। सिक्किम में तेज आंधी, बिजली गिरने के साथ साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। दक्षिण भारत में गर्मी जारी रहेगी। केरल और आंध्र प्रदेश में तापमान इस समय 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मौसम का संतुलन इस समय बिगड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार के इनकम टैक्स बिल 2025 के मुताबिक टैक्स अधिकारी अब बिना किसी वारंट या फिर सूचना के आपके ईमेल, सोशल मीडिया या फिर बैंक या फिर ट्रेडिंग जो खाते होते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह कानून आम लोगों की निजी जिंदगी में दखल दे रहा है और देश को एक जासूसी राज्य बना रहा है। पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए कर सकती है। Please pause and listen to what I'm going to say next, because this is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you're someone who values their privacy, it's time for you to speak up. Because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेशी मंत्री जयशंकर पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पीओके वापस लेना है तो किसने रोका है। उन्होंने कारगिल युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय पीओके वापस लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने चीन के कब्जे वाले कश्मीर पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। उमर ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हुए बवालों पर भी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद पर 2 साल पहले 7 करोड़ के चेक बाउंस करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। अदालत ने भी उसे भागोड़ा घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने जमानत देने से उनको इनकार कर दिया है और उनकी अगली सुनवाई 10 मार्च को टाल दी गई है। मोहम्मद शमी पर रमजान के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर बहस शुरू हो गई है, लेकिन शमा मोहम्मद ने उनका साथ देते हुए कहा कि इस्लाम में सफ़र या सेहत की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मौलाना खालिद राशिद ने भी शमी के समर्थन किया है और कहा है कि उन पर सवाल उठाना गलत है। वहीं सोशल मीडिया पर शमी की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस समय बनी हुई हैं। In Islam, there is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Mohammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number 2, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number 3, the Holy Quran
before we start a surah, it says Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion. As you know, that mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ के एक स्कूल पर छापा मारकर प्रिंसिपल और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वे छात्रों से पैसे लेकर उनको नकल करवा रहे थे। नकल के लिए वे 20,000 रुपये और कॉपी लिखने के लिए वे 50,000 रुपये तक ले रहे थे। स्कूल के बाहर भौतिक विज्ञान की कापियाँ लिखी जा रही थी। इसके अलावा 32 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे, जिससे परीक्षा की ईमानदारी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्ट्रेस रान्या राव ने जांघों और कपड़ों के बीच छुपाकर दुबई से 14.2 किलो सोना लाने की कोशिश की। कस्टम अधिकारियों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया। जांच में पता चला कि उन्होंने अपने शरीर पर टेप लगाकर जैकेट और बेल्ट में सोना छिपाया था। इसी तरह एक एयर होस्टेस ने शरीर के निजी हिस्सों में और एक व्यक्ति ने कॉफ़ी मशीन में सोना छिपाकर लाने की कोशिश की। भारत में बिना अनुमति के 1 किलो से ज़्यादा सोना लाना गैर कानूनी बताया जाता है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ 6 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया। यह घटना 1 मार्च को हुई थी, लेकिन 6 मार्च को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने और तेजाब से उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं ये बार बार बताती हैं कि इंडिया इस समय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगता है कि जैसे क्राइम आप करोगे तो कोई सज़ा मिलती है। नॉर्मली उन लोगों को लगता है कि क्राइम जैसा हो गया ना, पर्सनल हर दिन का एक रूटीन हो गया है कि जाओ कर लो, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, सरकार तो छोड़ ही देगी। संभल में होली के मौके पर मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठी है। इसे लेकर सीयू के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार होली एक गैर मुस्लिम त्यौहार है, इसलिए इसमें शामिल होना उनके लिए सही नहीं माना जाता है। हालांकि रंग खेलने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के त्योहारों में भाग लेना इस्लाम ने मना किया है। मतलब इस्लाम में दूसरे धर्मों के त्यौहार में आपको शामिल होना है, ऐसा इस्लाम में गलत बताया जाता है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की महिला सदस्यों को डांटा और राबड़ी देवी की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राबड़ी सरकार ने महिलाओं की पढ़ाई के लिए कुछ खास नहीं किया। नीतीश ने यह भी कहा कि महिलाओं की तरक्की में उनकी सरकार का बड़ा योगदान है। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के दौरान तेजस्वी यादव से भी उनकी तीखी बहस शुरू हो गई थी। बिहार में बिहार के लोगों को ही सिर्फ नौकरी मिलेगी, तेजस्वी यादव ने ये वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे। इसके बाद आरजेडी के विधायकों ने बेरोजगारी के खिलाफ विधानसभा में बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था। भाजपा ने आजीवन सहयोग निधि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इंदौर ने इस निधि में 3 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि भोपाल ने 1 करोड़ और मानसौर ने 40 लाख रुपए जमा किए हैं। कांग्रेस ने इस अभियान पर एक बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है, लेकिन भाजपा का कहना है कि सभी कार्यकर्ता अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं। पार्टी ने इस पर कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, ना हो सकता है उतना बाकी लोग बाकी राज्य दे सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कारपेट बिल्डर और कार्गो कंपनी के जुड़े 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और साबिर खान के घरों के दफ्तरों की तलाशी ली गई। इस दौरान गैर कानूनी संपत्ति, नकली और जरूरी कागजात मिले। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामला इसमें सामने आ रहा है। और भी लोगों के घरों में इस समय छापेमारी चल रही है जो बड़े बड़े लोग होते हैं। राहुल गांधी ने 7 मार्च से लेकर 8 मार्च तक गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में कांग्रेस के नेताओं, ब्लॉक प्रमुखों और पूर्व चुनाव उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने आने वाले चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की और 64 साल बाद हो रहे कांग्रेस के बड़े सम्मेलन की तैयारियों की जांच की। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी कम सीटें मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में
पार्टी गुजरात में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। इस दौरे का मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अगले चुनाव के लिए तैयार करना था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्च फिर से टाल दिया गया है क्योंकि अभी टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। DGCA और BCAS से मंजूरी मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। हालांकि रनवे और टैक्सेस बनाकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उड़ानों के लिए अभी मंजूरी नहीं दी गई है। यह एयरपोर्ट 28 रूटों पर काम करेगा, जिसमें 25 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट शामिल हैं। अब सबकी नज़र निर्माण के कार्य पर टिकी हुई है। सूरत में PM नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक ने उनकी तस्वीर लेकर भावुक होकर रोने लगा। मोदी ने सुरक्षा कर्मियों से तस्वीर मंगवाई और उस पर हस्ताक्षर भी किए, युवक को वापस दे दिया। यह प्यार भरा पल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया और लोग मोदी के इस छोटे से दिल छोड़ जाने वाले कदम पे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। आगरा के एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर्स के बीच बहस एक हिंसक झगड़े में बदल गई। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि टीचर्स एक दूसरे पर हाथापाई कर रहे हैं और लाठी डंडे से भी वार कर रहे हैं। कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जिससे लोग हैरान हैं। आधिकारिक मामले इसकी जाँच कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। ये सरकारी स्कूल में रीना मैडम ये सस्पेंड हो चुकी हैं, इनके पति और ये खुद यहाँ पे हाथापाई कर रहे हैं और हम गांव वाले देख रहे हैं। रीना मैडम के पति भी यहाँ पे हाथापाई करते हुए मैडम से ये सस्पेंड हो चुकी हैं। उसके बाद में भी ये स्कूल में आई हैं। तारा तोड़ने के बाद में ये हमारे गांव वाले गवाह के पक्ष में खड़े हुए हैं। जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन गांव से आप ना कहें। गांव के बारे में जो अपनी राजनीति अपने पास रखें। चलो मैं देखता हूँ। काम करा है भाई साहब काम करा है मैडम।
भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट ने पंचकुला के पास परीक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या के कारण दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इसको पायलट ने तुरंत ही फैसला लेकर विमान को आबादी वाले इलाकों से दूर ले गए और पैराशूट की मदद से खुद को सुरक्षित लैंडिंग से बचाया। हादसे की जांच इसमें शुरू कर दी गई है कि क्या प्रॉब्लम आ गई थी। मिलिट्री का जहाज चढ़ा लग रहा है यहाँ जी, तो यहाँ गिर गया भाई। चल रहे तो मिलिट्री का जहाज गिर गया भी यहाँ जंगल में, तो जहाज चढ़ा लग रहा है भाई, इस तोटे का जहाज। एएमयू में होली मनाने को लेकर विवाद इस समय बढ़ गया है। छात्रों ने कहा है कि उन्हें होली मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिन पर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है। सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि होली जरूर मनाई जाएगी और जो लोग गड़बड़ करेंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी। करड़ी सेना ने 10 मार्च को बिना अनुमति के होली मनाने का फैसला कर लिया है। छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी बात को नहीं सुनी गई तो मीटिंग के रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर देंगे पब्लिकली। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। राजकोट पुलिस ने होली के धुंधली के दौरान सड़कों पर सार्वजनिक जगहों पर रंग फेंकने, पानी के गुब्बारे फेंकने या फिर कीचड़ फैलाने को रोक लगा दिया गया है। यह फैसला लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। अगर कोई नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने त्यौहार के दौरान ये गश्त को बढ़ा दी है ताकि सभी शांतिपूर्वक तरीके से होली खेल सकें और किसी और को परेशानी ना हो। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफ़ी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहाँ होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। पीएम मोदी के सूरत के दौरे से पहले सुरक्षा की तैयारी के दौरान एक पुलिस वाले ने एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा, जिसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया गया था। पीएम मोदी गुजरात में एक जनसभा संबोधित करेंगे और 2500 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शुरू करेंगे। इस बार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है, जो कि एक नई पहल है। इससे ये भी संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएँ भी अपने फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं।
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली की जन कल्याण योजनाएं जैसे मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा बंद करने की तैयारी में इस समय है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की चेतावनी इस समय सही साबित हो रही है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बढ़कर बेटी को बढ़ाओ पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। बाकी दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो देखते हैं आगे इन लोग क्या करते हैं, अच्छा करते हैं या फिर क्या वैसा ही रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।